Good morning, dear students. In the previous lecture, we studied about law of conservation of energy. Now, today we are going to discuss a fresh topic, that is rate of doing work. Dear friends, when some work is given to you, अगर दोनों, there are two different persons, right? If both that person does the same work, does that mean that they are having equal power? चलिए सपोज आपको एक क्लासरूम में काम दिया कि क्लासरूम में रखी जो भी बेंचेस है, राइट, उसे आपको बाहर निकालना है. हर क्लास में लेट अस से देयर आर 20 बेंचेस, so there are 4 different classes and 4 different students are allotted to take out those 20 benches out of the class. तो चारों बच्चों ने वो काम किया, तो does that mean that all those 4 students had the same power? No. पावर के लिए वो वर्क कितने टाइम में हुआ, that is also important. So power is nothing but rate of doing some work, right? आप किसी जगह पे जाओ जहां पे 1000 स्टेप्स है, राइट, तो जो आदमी ज्यादा पावरफुल होगा वो 1000 स्टेप्स कम टाइम में चढ़ जाएगा, राइट. इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ इन वन गो यू विल क्लाइंब दैट 1000 स्टेप्स, बट इफ देयर इज सम एजेड पर्सन or let us say a person having some illness, that person will take relatively more time, क्योंकि वो क्या करेगा, 10-15 स्टेप चढ़ेगा, थोड़ी देर आराम करेगा, फिर 20-30 स्टेप चढ़ेगा, फिर आराम करेगा, पानी पिएगा, तो 1000 स्टेप्स तो वो चढ़ लेगा, बट that person will take relatively more time in completing that work. Why? Because that person is less powerful. Okay, so this rate of doing work is defined as power of the object. Okay, so let us first see the proper definition. Power is defined as the rate of doing work. Once again, power is defined as the rate yani speed. Okay, so power is defined as the rate of doing work, or in other words, rate of transfer of energy. तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. तो ये जो बल्ब है, दैट बल्ब इज ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. तो जितना फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन रेट होगा उतना बल्ब ज्यादा पावरफुल होगा एंड इट विल थ्रो मोर लाइट, राइट, बिकॉज इट्स रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मोर. ओके, सो वंस अगेन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन वेरी वेरी प्रॉपर्ली. पावर is defined as the rate or the speed of doing work, or in other words the rate of transfer of energy. Okay, तो जैसा कि हमने फॉर्मूलाज डिराइव की थी फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पावर को कैसे फाइंड करते हैं, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग लेट अस से सम वर्क W तो हुआ, लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, that is time. Okay, so if an object does work W in time small t, then the power can be calculated using this formula, that is power is equal to work upon time. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, the amount of work done by the object and the time taken by the object to complete that work. Once again, if you want to calculate power of any object or instrument, you should know 2 things. And what are those 2 things? First, the work done by the object or instrument upon time taken by that particular object to complete that particular work. Okay, तो उसको symbolically represent किया है. Power is symbolically represented as capital P. Okay, small p was for momentum. तो अगर आप small p लिखते हो तो वो गलत होगा. Power capital P is equal to work done capital W upon time taken, that is small t. अगर t कैपिटल हो गया तो वो पीरियोडिक टाइम हो जाएगा,
ठीक है, तो फॉर्मूला को प्रॉपर्ली लिखना सीख लेना। पावर P इज इक्वल टू W/T, वेयर P represents power, W represents work and small t represents the time taken to complete that particular work. So dear friends, I am quite sure that you understood the concept of power. Power is nothing but the rate of doing some work. यानी कि कोई भी वर्क कितने टाइम में हुआ ये आपको कैलकुलेट करके बताता है द पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ द यूनिट, चलिए पावर की फॉर्मूला तो आ गई। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। जनरली वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल, तो ऊपर आया जूल अपॉन टाइम, उसका ऐसा यूनिट है सेकंड। तो ऑब्वियसली द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड, or it is also written as joule second inverse, right? But the more common unit, right, the more common unit of power is watt. So unit of power is also taken as watt, W-A-T-T, in the memory of the famous renowned scientist James Watt. About James Watt you have studied many chapters, right? Many stories are there about him, that he invented many gadgets that we are finding it useful in our day-to-day life. So to honor that particular scientist James Watt, unit of power is also taken as watt. Okay? तो 1 watt पावर, उसकी डेफिनेशन क्या है? जो आपका आंसर नी शॉर्ट वाला जो सेक्शन होता है 1 मार्क वाले क्वेश्चन, राइट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ 1 watt पावर। तो 1 watt is the power of an agent, agent यानी a gadget or instrument or an object that does the work कितना 1 joule in 1 second। जब कोई गैजेट, कोई इंस्ट्रूमेंट 1 जूल वर्क करता है 1 सेकंड में, then you can say that the power of that particular gadget or the power of that particular instrument is 1 watt। तो 1 watt is equal to 1 joule per second, क्योंकि watt and joule per second are both accepted units of power। ओके, अब अगर आपको पावर थोड़ी और अमाउंट में चाहिए, तो पावर जैसे कि ग्राम को हम किलोग्राम में करते हैं, जूल को किलो जूल में करते हैं, वॉट को हम कर सकते हैं किलोवाट में। तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, kW means 1 किलोवाट is equal to 1000 watt और 1000 जूल पर सेकंड। डियर फ्रेंड्स, आपके घर में एलईडी बल्ब लगे हुए होंगे, राइट। तो अगर आप उस बल्ब को केयरफुली देखोगे तो उस पे पावर रेटिंग दिया हुआ होता है, राइट, कि भाई ये बल्ब है वो 5 वाट का है, ये बल्ब है 10 वाट का है, ये बल्ब है 12 वाट का है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? विजिबल डिफरेंस आपको दिखेगा कि ये जो 5 वाट वाला बल्ब है उससे 10 वाट वाला बल्ब ज्यादा लाइट देगा, राइट। इफ यू turn on a 5 watt bulb and a 10 watt bulb, you will see that the 10 watt bulb is giving more light। क्यों? क्योंकि उसका पावर ज्यादा है। What is power? The rate of converting the electrical energy into light energy। ओके, तो जो पावर ज्यादा कंज्यूम करता है वो वर्क डन भी ज्यादा करता है, और वर्क डन ज्यादा करता है तो उससे उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी ज्यादा होता है। तो जो 5 वाट का बल्ब है उससे ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा? 10 वाट वाला बल्ब। व्हाई? बिकॉज इट्स रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज ग्रेटर। ओके, बट ऑन द अदर हैंड इट विल आल्सो डू मोर वर्क। तो अगर वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसके सामने उसका जो वर्क डन है वो भी ज्यादा है, इसलिए वो जो लाइट देता है दैट विल बी आल्सो ग्रेटर। ओके, अब बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर ऑलवेज सेम नहीं रहता, राइट। जैसा कि आपको यहाँ से चल के 50 किलोमीटर दूर जाना है, कोई मन्नत मांग ली है आपके मम्मी पापा ने आपके लिए, और संडे को आपको वहां पे चल के जाना है, तो जो पहला 1 घंटा है उसमें आपकी स्पीड ज्यादा होगी। सो इन फर्स्ट आवर यू विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, बट ग्रेजुअली एज द टाइम गोज पर 1 आवर योर स्पीड विल डिक्रीज। तो जो आपके जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो भी कम हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? एवरेज ले लेते हो, एवरेज लेके आप अपनी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो सेम वे is with the power with change in time। okay, the rate of doing work also changes। तो किसी भी मोमेंट का पावर कैलकुलेट करने से ज्यादा है
हाउ टू गेट एवरेज पावर। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि हाउ टू फाइंड आउट एवरेज पावर। व्हाई? बिकॉज द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट वोंट रिमेन सेम एवरी टाइम, इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो बेटर प्रॉपर यूनिट है दैट इज एवरेज पावर। सो वी ऑब्टेन एवरेज पावर। हाउ टू फाइंड आउट एवरेज पावर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। वी ऑब्टेन एवरेज पावर हाउ? बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम। किसी एक मोमेंट पे कितनी एनर्जी कंज्यूम, ऐसा नहीं फाइंड करते, ड्यूरिंग द होल टाइम ड्यूरेशन द टोटल एनर्जी कंज्यूम इज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। सो व्हेन यू डिवाइड द टोटल एनर्जी विद द टोटल टाइम you get the average power of an object. Okay, so after getting the proper understanding of the term power, after learning about its different units, we'll solve one example which is based on powers. So what is the question? We are solving example 11.7. Two girls each of 400 न्यूटन, यानी यहाँ पे हमको वेट दे दिया है, मास नहीं, टोटल वेट। सो देयर आर टू गर्ल्स, बोथ आर हैविंग वेट ऑफ 400 न्यूटन। दे क्लाइंब अप अ रोप थ्रू हाइट ऑफ 8 मीटर। ओके, तो एक टास्क दिया हुआ है इन दोनों गर्ल्स को कि उन्हें एक रोप को क्लाइंब करना है अप टू द हाइट ऑफ 8 मीटर। सो बोथ गर्ल्स आर डूइंग दैट, राइट? Now to do this work, girl A takes 20 seconds. यानी यहाँ पे जो दो गर्ल्स है, गर्ल्स A and B, उसमें से जो the first girl है, that is girl A, climbs up the rope up to 8 meters. That was the task given to her. In how much time? 20 seconds. Whereas another girl, which is named as girl B, is taking 50 seconds to complete the same task. तो दोनों ने वर्क सेम किया. They climbed up to the height of 8 meters. But both have taken different time, that is 20 seconds and 50 seconds. Okay, that means the power of both the girls will be different. हमको यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? What is the power expended by both girls? So one by one we'll find out the power expended by both girls. So let us say first we calculate power expended by गर्ल A। ठीक है, यहां पे गर्ल A का वेट कितना है? 400 न्यूटन। ओके, द हाइट दैट शी क्लाइम्स is 8 meter and time taken by the girl is 20 seconds। ओके, अब आते हैं पावर पे। तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ओके, सो पावर P। अब यहां पे जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर्ड। ओके, तो यहां पे गर्ल इज गोइंग टू अ हाइट, तो कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है m इंटू जी इंटू एच। तो यहां पे वर्क डन की जगह पे आएगा mgh अपॉन टाइम टेकन t। वंस अगेन, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यहां पे जो वर्क हुआ, वर्क करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन is equal to the energy expended। वर्क उतना ही होता है जितनी आप एनर्जी एक्सपेंड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन की जगह पे मैंने क्या यूज किया? द एनर्जी एक्सपेंडेड। एंड दैट एनर्जी कौन से फॉर्म में? गर्ल हाइट पे गई, यहाँ पे स्पीड बीट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे हमको वेट दिया हुआ है, वेट W, उसकी फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी। तो यहां पे जो m इंटू जी है दैट इज इक्वल टू वेट W एंड द वैल्यू ऑफ W इज 400 न्यूटन। इंस्टेड ऑफ mg आई एम राइटिंग 400। समझना कहां से आया?
वेट 400 न्यूटन, W इज इक्वल टू m इंटू जी, तो यहाँ पे m इंटू जी की जगह मैंने W की वैल्यू ले ली, दैट इज 400। अब जो हाइट क्लाइंब होती है दैट इज 8 मीटर अपॉन जो हमारी फर्स्ट गर्ल है दैट इज गर्ल ए, दैट टेक्स टाइम ऑफ 20 सेकंड, तो यहाँ पे आएगा 20, चलो 0 0 कट हो गया, 2 कट होगा तो 20 होगा, तो 28 the power extended by girl A is 160 watt. Similarly, now we will find power expended by girl B. तो वहां पे उसका वेट तो सेम है, both the girls see here, two girls each of weight, यानी दोनों गर्ल्स का वेट सेम है, कितना है 400 न्यूटन, तो यहाँ पे भी वेट है 400 न्यूटन, दोनों सेम हाइट पे जा रही है 8 मीटर, तो हाइट होगी 8 मीटर, बट हियर द टाइम टेकन बाय गर्ल इज डिफरेंट। पहले केस में गर्ल ए का 20 सेकंड था, यहाँ पे गर्ल बी इज टेकिंग 50 सेकंड्स, सो हियर टाइम विल बी 50 सेकंड। अब हमें गर्ल बी का भी पावर एक्सपेंडेड फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला यूज होगी, इट इज पावर P इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो यही फॉर्मूला आएगी mgh अपॉन T, लेट अस पुट द वैल्यूज, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 400 कैसे आया, अगेन पहले सम के जैसे ही, वेट W इज इक्वल टू mg और W की वैल्यू है 400, mg की जगह 400, हाइट है सेम 8 अपॉन यहाँ पे टाइम हमारे पास है 50, ओके, तो चलिए 0 0 कट हो गया और 5 8 जा 40 होता है, 8 8 जा, सो हियर पावर P इज 64 वाट। तो आप देख सकते हो कि द गर्ल who took lesser time she expended more power, that is 160 watt, and girl B who took more time has less power expended, that is 64 watts. So in short, we found out the power expended by both girls. For girl A, its value is 160 watt, and for girl B, the same value is 64 watt. यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले तो पावर की फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, बट वर्क डन is equal to the energy, ओके, और एनर्जी कौन से फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए यहाँ पे लिखा है mgh, रेट ऑफ डूइंग दैट वर्क अपॉन T, एंड हियर द वैल्यू ऑफ वेट इज गिवन एंड वेट इज m into g, तो जहां पे mg आता है वहां पे हमने वेट की वैल्यू 400 डाली है। इफ यू अंडरस्टैंड these two things, solving of something is very easy. So in next lecture, we will solve some more examples related to power. Till then, goodbye and take care. Thank you.